ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب گوہر نفیس کا کہنا ہے کہ سرکاری زمینوں پر قبضے کرنے والوں کے خلاف گرین بک کی مدد سے تحقیقات شروع کر دیں۔ ملتان میں پی ایس ایل، کرنٹینہ، بکر منڈیوں سمیت دیگر منصوبوں میں کرپشن کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب محمد گوہر نفیس نے کہا کہ سابق کمشنر ملتان شان الحق اور ان کے ماتحت افسران نے احساس کفالت پروگرام، پی ایس ایل میچ اور کشمیر ڈے کے نام پر 22 کروڑ روپے کے گھپلے کیے۔ 13 کروڑ روپے کی بوگس ادائیگیاں کی گئیں۔ فرانزک رپورٹ میں سابق کمشنر کی 13,40,000 روپے کی بلوں پر ان کے دستخط کی تصدیق ہو گئی۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ انسداد رشوت ستانی کو خود مختار ادارہ بنانے کی سفارشات حکومت کو بھجوا دی گئی ہیں۔ 13 کروڑ روپیہ جو ہے انہوں نے ہمیں لکھ کے بھیجا ہے کہ جی یہ جعلی دستخطوں سے جو ہے وہ وڈرا ہوا ہے۔ اس میں سی او ہے، ایم او فائنانس ہے اور 14 کے قریب لوگ ہیں، اور یہ وہ بلز ہیں جو کہ موسٹلی پرانے تھے۔ 2013 کے الیکشن کی لائبلٹی، بکر منڈی کی لائبلٹی بالکل بوگس پیمنٹس ہیں، اور یہ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ 13 کروڑ روپے کی بوگس پیمنٹس ہیں۔ ڈی جی اینٹی کرپشن نے کہا کہ اینٹی کرپشن کیسز میں پرائیویٹ شخص کی بجائے اب اسٹیٹ نقصان پر حکومت مدعی بنے گی۔ اینٹی کرپشن کے تفتیشی افسروں کو تفتیش کے لیے اخراجات دیے جا رہے ہیں۔ پی سی ایس بوگس بھرتیوں کے اسکینڈل کی تحقیقات بھی جاری ہیں۔ یہ جو بوگس پیمنٹ ہوئی تھی کمشنر صاحب کے سگنیچر سے، وہ ہم نے جو ہے فائنل کر لی، اپنا کیس جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں سرکاری کرپشن اسکینڈل میں بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ ایڈیشنل آئی جی واحد کے خواجہ صفدر اقبال نے قومی خزانے میں علی ناصر رضوی اور ڈائریکٹر جنرل نیکٹا اختر عمر حیات لالکا کے خلاف ریفرنس میں بریت کی درخواست منظور کر لی۔ ملزمان کے وکلاء محمد نعیم خان اور رانا آصف سعید نے دلائل دیے کہ نیب کی انکوائری بے بنیاد ہے۔ نیب حکام کے مطابق ایڈیشنل آئی جی بلوچستان علی ناصر رضوی اور ڈائریکٹر جنرل نیکٹا اختر عمر حیات لالکا کے خلاف اربوں روپے کی کرپشن کرنے کا ریفرنس 2017 میں تیار کیا گیا تھا۔ الزام تھا کہ انہوں نے بہاڑی میں بطور ڈی پی او تعیناتی پر پے اینڈ الاؤنسز اور دیگر اخراجات کی مد میں قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اس معاملے پر 2008 سے 2012 اور 2012 سے 2013 تک انکوائریاں کی گئیں۔ انہوں نے اکاؤنٹنٹ ڈی پی او آفس مرحوم عبدالستار کے ذریعے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ کیس میں دیگر ڈی پی اوز بھی ملوث تھے، جن میں سے شارق کمال گزشتہ برس 16 جنوری کو عدم شواہد کی بنیاد پر بری ہو چکے ہیں، جبکہ ملزمان پر 20 دسمبر 2018 میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ پنجاب حکومت نے چینی لے لی مگر پیسے نہ دیے۔ پنجاب حکومت نے پاکستان ٹریڈ کارپوریشن کو چینی کا بل تاحال ادا نہیں کیا۔ پنجاب حکومت نے 50,000 میٹرک ٹن سے زائد کی چینی خریدی۔ پی ٹی سی نے متعدد بار 5 ارب 66 کروڑ کے واجبات کلیئر کرنے کی درخواست کی۔ واجبات جلد ادا کر دیے جائیں گے، محکمہ خوراک پنجاب کا ایسا کہنا ہے۔ پی ڈی ایم لانگ مارچ ہر صورت میں ہوگا۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کا اعلان عوام کی سہولت دیکھ کر کریں گے۔ عمران خان اگر جانے پر راضی نہیں تو عوام کے ساتھ مل کر کچھ اور فیصلہ کریں گے۔ ان کا مزید کا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ کل بہاولپور نے اپنا ریکارڈ خود ہی توڑا۔ کل 8-9 گھنٹے کنٹینیوس جس طرح بہاولپور کی عوام نے میرے ساتھ وہ پیدل بھی چلے، گاڑیوں میں مختلف جگہوں پر جس طرح انہوں نے میرا استقبال کیا، مجھے محبت سے نوازا، بہت شکر گزار۔ پی ڈی ایم کا کیا ہے پلان لانگ مارچ کا؟ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ کا پلان بالکل ہے۔ لانگ مارچ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تاریخ کا اعلان لوگوں کی سہولت کو، موسم کو دیکھ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ اور جو استعفوں کا فیصلہ ہوا تھا 31 ستمبر تک حکومت میں نہیں رہی ابھی تک، عمران خان کے واپس جانے کا مطالبہ تھا کہ 31 تاریخ تک اگر عمران خان استعفیٰ نہیں دیتا تو آگے آپ کا وہ ابھی تک انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ 31 جنوری جب آئی تھی اور ہم دیکھیں گے کہ وہ اگر عزت سے جانے پہ راضی نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ عوام کو اور لانگ مارچ آخری آپشن ہوگا، اس کے بعد استعفیٰ دیں گے۔ سابق صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ کی گفتگو۔ کامیاب ریلی پر مقامی سیاستدان کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے روہت سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ کل کی کامیاب ریلی پر بہاولپور کے تمام مقامی سیاستدان کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ دوسرے مرحلے میں ریلیاں نکال رہے ہیں۔ لانگ مارچ آخری آپشن ہوگا، اس کے بعد استعفے دیں گے۔ لاسٹ میٹنگ جو ہوئی اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ استعفوں کا آپشن لاسٹ آپشن ہوگا، اور اسے اس وقت استعمال کیا جائے گا جب سڑک گرم ہو۔ یہ ایک سیاسی اصطلاح ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک آخری دھکے کے طور پہ
गवर्नमेंट को जो है वो दिया जाता है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि अवाम को महंगाई के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ न सिर्फ दहशत गर्दी पे और जो है वो दहशत गर्दी पे और लोड शेडिंग पे काबू पाया था, तो ये तो अब जो है वो लोड शेडिंग ये गैस की भी हो रही है, बिजली की भी हो रही है और दहशत गर्दी वापस आ रही है, तो ये हुकूमत तो हर हवाले से नाकाम हो चुकी है। साबिक सूबाई वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने बारे पीडीएम क़यादत फैसला करेगी। कैमरामैन शाह सिकलैन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वो कल बहावलपुर में पीडीएम के शो को पावर शो नहीं कहेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मुखालिफिन ने अपने दौरे हुकूमत में जनूबी पंजाब के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गुज़श्ता 2.5 साल के मुख्तसर अरसे में जनूबी पंजाब के हवाले से 2 बड़े फैसले किए। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली के लिए मुल्तान और बहावलपुर में 2 इंतजामी सेक्रेटेरिएट कायम किए गए। जनूबी पंजाब के लिए खसूसी फंड्स मुख्तस किए गए जो जनूबी पंजाब की तमीर और तरक्की पर खर्च होंगे। कबीरवाला में डिप्टी कमिश्नर का रात गए रूरल हेल्थ सेंटर अब्दुल हकीम का अचानक दौरा। कबीरवाला में ड्यूटी से गैर हाजिरी पर चार्ज नर्स और LHV मुअत्तल कर दी गई। सीओ हेल्थ को गैर हाजिर दोनों एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म दिया गया। DC ने डॉक्टरों और दीगर अमले की हाजिरियां भी चेक की। वॉशरूम्स और वार्ड्स में सफाई और स्टोर में अद्वियात के स्टॉक का मुआयना भी किया गया। ड्यूटी डॉक्टर को रात के वक्त हर सूरत हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। बात करेंगे आटे के बहरान की। डीडे खान में एक बार फिर आटे का संगीन बहरान पैदा हो गया। यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब हो गया। आसिर इशफाक हमें रिपोर्ट करेंगे। डेरा गाजी खान में एक मरतबा फिर से आटे का बहरान पैदा हो गया है। शहर में मौजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता 10 रोज से आटा मयसर नहीं है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 10 रोज हो गए आटा किसी स्टोर से भी नहीं मिल रहा। पोल डाट से लेकर ना चौक चुरट्टा तक जितने स्टोर हैं, 13 ब्लॉक वाला स्टोर, ये स्टोर, आटा शार्ट है। क्या वजह बताते हैं? ये कोई वजह बस आएगा तो देंगे, अभी तक नहीं आया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आए शहरी आटा ना मिलने पर नालां दिखाई दिए। शहरियों का कहना था गुज़िश्ता कई रोज से शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर चक्कर लगा रहे हैं, कहीं से भी आटा नहीं मिल रहा। भाई 2 हफ्ते हो गए जलील हो रहे हैं, अभी बिल्कुल भी नहीं आटा मिल रहा, ना घी मिल रहा है। घी भी और उसके साथ दाल दे रहे हैं, कुछ और चीजें दे रहे हैं। भाई उसके लिए तो घी दे रहे हैं, नहीं तो घी दे। शहर का कहना था इंतजामिया यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की शॉर्टेज का नोटिस ले। डेरा गाजी खान के अंदर आटे की शॉर्टेज एक मरतबा फिर सर उठाने लगी है। डेरा गाजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर गुज़िश्ता 10 रोज से आटा मयसर नहीं है, जिसके बाद लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मैप्को के डेली वेजेस मुलाजमीन ने मुस्तकिल ना होने के खिलाफ मैप्को हेडक्वार्टर ऑफिस के सामने 7 घंटे एहतजाजी धरना दिए रखा। रोड ब्लॉक होने से मरीजों को ले जाने वाली 3 एम्बुलेंस भी फंस कर रह गई। बिलाल नियाजी की रिपोर्ट। डेली वेजेस मुलाजमीन ने मुस्तकिल ना किए जाने के खिलाफ मैप्को ऑफिस के सामने धरना दे दिया। धरने में जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से डेली वेजेस मुलाजमीन ने शिरकत की। मैप्को इंतजामिया की जानिब से मुज़ाकरात ना किए जाने पर मुजाहिरीन खानेवार रोड पर आ गए और सड़क को ब्लॉक कर दिया। रोड ब्लॉक होने से चौक कुम्हारा वाला, न्यू मुल्तान, पीरा गायब रोड, कचहरी चौक, 9 नंबर, ईदगाह, रशीदाबाद से आने वाली ट्रैफिक शदीद मुतासिर हुई। कानों तक जूं नहीं रेंग रही अभी तक ये कोई भी बंदा हमारे तक आके बात नहीं सुनी। हम पिछले 4 साल से डेली वेजेस लेबर पे काम कर रहे हैं, हमें रेगुलर क्यों नहीं किया गया? हमें हमारा हक दिया जाए। खानेवाल रोड ब्लॉक होने से 3 मजीद एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंस गयी। मैप्को इंतजामिया ने मुजाहिरीन के नुमाइंदगान को मुज़ाकरात के लिए बुलाया। मैप्को इंतजामिया की जानिब से डायरेक्टर HR मैप्को ACCT आबदा फरीद की जानिब से मुज़ाकरात किए गए। हायर लेवल तक जो है ना इसको टेकअप करेंगे। और दूसरा, मुझे DC साहब की तरफ से ये भी मैसेज आप लोगों को कन्वे करने को कहा गया है कि हम अपनी चैनल्स के थ्रू भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहेंगे, सूबाई हुकूमत के लेवल पे इस बात को टेकअप करेंगे कि आप लोगों की जो भी जायज मुतालबात है इंशाल्लाह उसको पूरा किया जाए। इंतजामिया की यकीन दहानी पर मुलाजमीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन करार हैदर के साथ बिलाल नियाजी, रोही, मुल्तान। महकमा सेहत के सेंट्री पेट्रोल वर्कर्स का 6 माह की तनख्वाहें और एक्सटेंशन न मिलने पर एहतजाज। खुशाब रोड ब्लॉक करके धरना दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर की यकीन दहानी के बाद एहतजाज कल तक के लिए मौखर कर दिया गया।
महकमा सेहत की जानिब से सेंट्री पेट्रोल वर्कर से 6 माह तक पोलियो, डेंगू और कोरोना के हवाले से ड्यूटियां तो ले ली गईं, लेकिन तनख्वाहें मांगने पर नौकरी से ही फारिग कर दिया गया, जिस पर सेंट्री पेट्रोल वर्कर्स ने 4 घंटे तक खुशाब रोड ब्लॉक करके धरना दिया। हमारा मुतालबा ये है कि हम सेंट्री पेट्रोल मुलाजमीन हैं और हमें तनख्वाहें 6 माह की तनख्वाहें नहीं दी जा रही। इसके अलावा हमसे काम सारे करवाए जा रहे हैं, लेकिन हमें पे नहीं दी जा रही और हमें एक्सटेंड करने की बजाय हमें नौकरी से निकाला जा रहा है। हमारा मुतालबा ये है कि प्लीज हम लोगों को पे भी दें और हमारा एक्सटेंशन लेटर भी हमें दें। सेंट्री पेट्रोल वर्कर का कहना था कि सीओ हेल्थ ने जो अखबार में इश्तिहार दिया, इसके मुताबिक अपने वादे पूरे करें और इनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करें। हमारा मुतालबा ये है कि हमें 6 माह के लिए लोगों ने एक्सटेंड किया था और हमारे पिछले लेटर्स भी नहीं दिए और इस बार भी देने थे वो भी नहीं दिए और हमें ना ही 6 माह की पे दी है और उसके हमें आगे एक्सटेंड करने की बजाय हमें जॉब से निकाल रहे हैं। सीओ हेल्थ का कहना है कि 3 माह की तनख्वाहें जारी कर दी, 3 दिन तक वर्कर्स के अकाउंट में आ जाएंगी। सेंट्री पेट्रोल वर्कर की जानिब से 4 घंटे तक अपनी तनख्वाहों और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू के लिए दिए जाने वाला खुशाब रोड पे धरना असिस्टेंट कमिश्नर की मदाखलत पर कल तक के लिए मौखर कर दिया गया। सेंट्री वर्कर्स का कहना है कि अगर मुतालबात के मंजूर ना किए गए तो एक दफा फिर से धरना देंगे। कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ जुनैद खान। बलोचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दी की सफाकाना वारदात के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से मुल्तान प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी की मुतालबा भी किया गया। मच में दहशतगर्दों की सफाकाना वारदात के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से मुल्तान प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा का कहना था कि हुकूमत सफाक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी फौरी तौर पर अमल में लाए। मुजाहिरे में खवातीन के हमरा बच्चों ने भी प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे जिन पर दहशतगर्दों के खिलाफ नारे दर्ज थे। उधर लिया में मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आला पंजाब रफ़ाकत गिलानी और म्यूनसिपल कमेटी के अमले में ठन गई। म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन का MPA के नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाज। रफ़ाकत गिलानी पर अफसरान को धमकियां देने का इल्जाम लगा दिया। लिया में MPA और म्यूनसिपल कमेटी अमला आमने सामने आ गए। गुज़श्ता रोज मामले खसूसी वज़ीर-ए-आला पंजाब रफ़ाकत गिलानी ने म्यूनसिपल कमेटी दफ्तर आकर चीफ ऑफिसर और अफसरान को धमकियां दी और नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। MPA के रवैये के खिलाफ म्यूनसिपल कमेटी के अमले ने सदर एपका नईम खतरान की क़यादत में एहतजाज किया। MPA साहब इधर म्यूनसिपल कमेटी लिया है और हमारे सीनियर एहलकार मलिक अख्तर हुसैन के साथ उनका जो रवैया था, हम उनके उस रवैये पे जो है ना हम सरापा एहतजाज है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अख्तर हुसैन ने इल्जाम आयद किया शहरी के खिलाफ गटर हटाने के नोटिस पर MPA तैश में आए और हरासा किया। एक दरखास्त ये है कि गली में जो गटर बने हुए थे वो गली से ऊपर उठे हुए थे, जिस वजह से मैंने उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किए। लानी साहब ने यह कहा जी इधर जल्दी, जैसे गुस्से में ही सख्त लहजे में मेरे साथ उन्होंने बात की है, जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो या मैंने उनसे कोई पैसे लिए हो या मैंने कोई चोरी की हो। MP रफ़ाकत गिलानी ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए गुस्से की वजह शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल को करार दिया। उन्होंने कहा कि LEDs को म्यूनसिपल कमेटी ने सील किया मगर किसी के कारोबार को बंद नहीं होने देंगे। खास तौर पे सफाई के मामले से हमें काफ़ी अरसे से शिकायत आ रही थी कि शहर के अंदर सफाई और सीवरेज के मसाइल आ रहे हैं। डेवलपमेंट के हवाले से हमने काफ़ी सारा काम भी किया, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी लाए हैं, लेकिन ये म्यूनसिपल कमेटी काफ़ी अरसे से ताउन नहीं कर रही थी। CO साहब को बारहा समझाया गया तो उनके साथ कल इसीलिए शदीद गुस्सा का इजहार भी किया कि आप लोग अपने किबला दुरुस्त करें। MP रफ़ाकत गिलानी ने कहा अगर म्यूनसिपल कमेटी ने किबला दुरुस्त ना किया तो कार्रवाई होगी। म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने कहा कि अगर MPA ने रवैये पर माजरत ना की तो एहतजाज जारी रहेगा। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज रोही लिया। मियांवाली में पिपला कुंदिया थल किनार रोड खस्ताहाली का शिकार, हादसात मामूल बन गए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि रोड को तामीर किया जाए। मियांवाली में पिपला कुंदिया थल किनार रोड जगह जगह से टूट फूट गई। शहरियों का कहना है कि रोड की खस्ताहाली के बाइस कई हादसात हो चुकी हैं, 3 अमवात भी हो चुकी हैं। गुज़श्ता दिनों मोटरसाइकिल रिक्शा भी नहर में गिर चुका है मगर इंतजामिया ने रोड बारे खामोशी इख्तियार कर रखी है। कोई मरम्मत नहीं हुई है, इसकी वजह से कई हादसात हो चुके हैं। 2-3 चिंचियां नहर में गिर गई हैं और आदमी मर गए हैं। इसी वजह से कोई आदमी इस रोड का ख्याल नहीं कर रहा है।
शहरियों ने बताया कि लोगों की जानो माल का नुकसान हो चुका है। रोड को असर नौ तामीर करना तो दूर की बात, जब से रोड तामीर हुआ है मुरम्मत भी नहीं कराई गई। इसकी तमीर तो दूर की बात है, इसकी मुरम्मत भी नहीं की गई और इसकी नामुरम्मत की वजह से कई हादसात हुए हैं। ये इस रोड की हालत बहुत खराब है, इंतजामिया को इस बारे में नहीं पता, रोड को तमीर करना चाहिए। पिपला कुनिया थल कैनाल रोड कुंदिया और चश्मा बिराज को जाने वाला इकलौता रोड होने के बावजूद इंतजामिया की नजरों से ओझल है। रोड की खस्ताहाली के बायस यहाँ पर मुतअद्दद हादसात हो चुके हैं, जिनमें कीमती जानों का ज़िया हो चुका है, लेकिन इंतजामिया को इस हवाले से कोई परवाह नहीं कि इस रोड पर रोजाना की बुनियाद पर हादसात हो रहे हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। मुल्तान में रेस्क्यू 1122 ने कोरोना मरीजों की सहूलत के लिए 4 जदीद वेंटिलेटर एम्बुलेंसेस फाल कर दी। 1 करोड़ मालियत से तैयार करदा एम्बुलेंस में 6 घंटे तक मरीज को ऑक्सीजन फ्राहम हो सकती है। रेस्क्यू 1122 मुल्तान ने 4 जदीद एम्बुलेंसेस फाल कर दी। एम्बुलेंस में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के साथ साथ वेंटिलेटर की सहूलत भी मुयस्सर है। 1 करोड़ मालियत से तैयार करदा एम्बुलेंस में 6 घंटे तक मरीज को ऑक्सीजन फराहम हो सकती है। रेस्क्यू ऑफिसर मोहम्मद उस्मान का कहना है कि कोरोना की सूरत हाल में जदीद एम्बुलेंस इस्तेमाल हो रही हैं। डिवीजनल हेड ऑफिस में जो है ये वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई है। खुसूसन ये कोविड-19 की सूरत हाल देखते हुए अगर कोई शदीद इल भी है, इल हालत में है, जिसे कि वेंटिलेटर की जरूरत है, जिसे कोई सीरियस मसला है, तो उनके लिए भी ये वेंटिलेटर कारआमद है। जदीद एम्बुलेंस में पहला मरीज अस्पताल मुंतकिल हुआ तो 3 घंटे लगातार ऑक्सीजन फराहम की गई। एम्बुलेंस में पोर्टेबल वेंटिलेटर भी दस्तयाब है। रेस्क्यू एहलकार 3 शिफ्टों में जदीद एम्बुलेंस चलाएंगे। तो हमारे पास ये पोर्टेबल ट्रांसफरेबल वेंटिलेटर्स हैं। खुदा न खास्ता अगर हमारे पास आईसीयू में बेड अवेलेबल नहीं है वेंटिलेटर वाला, तो 3 से 4 घंटे तक एज ए मिनी हॉस्पिटल ये एम्बुलेंस रोल अदा कर सकती है। इब्तदाई तौर पर 4 एम्बुलेंसेस मुल्तान में फाल की गई हैं। अगले मरहले में जनूबी पंजाब के तमाम शहरों में ये सहूलत फराहम होगी ताकि मरीजों को बेहतर सहूलियात के साथ अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ यासिर मजीद, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी सर्विसेज के लिए बड़ा कदम। शहरियों को मुफ्त सफरी सहूलत देने के लिए बस सर्विस शुरू कर दी गई। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट स्क्वाड में नई बसों का इजाफा हुआ। कोरोना वायरस की वजह से बसों के रूट्स बंद हुए तो कम्युनिटी सर्विस का आगाज करने में पहला कदम उठा लिया गया। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक का कहना था कि यूनिवर्सिटी की बस रूट्स आजमाइशी तौर पर 1 हफ्ते के लिए शुरू की जा रही है, फिर इस पर लोगों का रुझान देखते हुए मुस्तकिल करने का फैसला किया जाएगा। 3-4 जगह से ये पूरा हफ्ता मुफ्त चलेगी। इसके बाद हम रिस्पांस दे के तो इंशाल्लाह ताला मैं और MNA चौधरी जवेद इकबाल वड़ैच और DCO रहीम यार खान सारे मिलके आसिम मजीद साहब कोशिश करेंगे कि इसका रिजल्ट देख के इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट से बसें लेके अवाम को ये सहूलत इंशाल्लाह ताला देंगे। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर का कहना था कि यूनिवर्सिटी कम्युनिटी की जरूरत का भी ख्याल कर रही है। यूनिवर्सिटी यहाँ अच्छी तालीम दे रही है, तालीम के साथ साथ लोगों में तालीम की अवेयरनेस, एजुकेशन की अवेयरनेस के साथ साथ लोगों को फ्री सफरी सहूलतें, और इसमें हम एडमिशन कैंपेन के हवाले से भी लोगों को बताएंगे। यूनिवर्सिटी बस 3 रूट्स चौक बहादुरपुर से सिटी पुल, कुशने इकबाल से सिटी पुल और पुल सनी से सिटी पुल तक चलाई जा रही है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मरकजी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने किसानों के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई है। किसानों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात के अंदर इस मौका पर किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर ने मुतालबा किया कि किसानों के तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने किसानों के तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी कराई। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर का कहना था कि किसानों के मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशा हैं। हुकूमत पंजाब का 5 जनवरी को यौम हक़ खुद इरादियत कश्मीर मनाने का फैसला। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का डिप्टी कमिश्नर्स को हक़ खुद इरादियत डे भरपूर अंदाज में मनाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी करदा मुरासले के मुताबिक 5 जनवरी को यौम हक़ खुद इरादियत कश्मीर के तौर पर मनाया जाएगा। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने डिप्टी कमिश्नर्स को तैयारियों का टास्क दे दिया है। कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि डिवीजन भर में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत की जाएगी। कश्मीरी बहन भाई आज भी जबर तसल्लुत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को बज़ोर बाजू दबाने की कोशिश की जा रही है। असलहे के जोर पर किसी कौम के जज्बा आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। कश्मीरियों की आवाज़ अक़वाम आलम तक पहुँचाएंगे।
कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का मदनी पार्क और पनाहगाह का दौरा। मदनी पार्क की अपग्रेडेशन और माजूर बच्चों के खेल कार्नर बनाने के अहकाम जारी किए गए। इंतजामिया से जवाब भी तलब कर लिया गया है। मजीद देखें गौहर रहमान की रिपोर्ट में। शाहरुख ने आलम के मकीनों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने अचानक मदनी पार्क का दौरा किया और पार्क की अपग्रेडेशन के अहकाम जारी कर दिए। अपग्रेडेशन के तहत वॉकिंग ट्रैक और माजूर बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया जाएगा। उसकी अपलिफ्ट होगी, उसको डेवलप किया जाएगा। उसमें सिटीजन्स के लिए एक बहुत अच्छा वॉकिंग ट्रैक जो है वो उसमें बनाने जा रहे हैं और जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनका जो एरिया है उसको भी हमने डेवलप करना है। कमिश्नर ने जनरल बस स्टैंड पनाहगाह का भी दौरा किया। पनाहगाह में गंदे बिस्तरों पर कमिश्नर ने बरहमी का इजहार किया और इंतजामिया से नाकिस इंतजामात पर जवाब तलब कर लिया। जनरल बस स्टैंड पे हमारी मेन पनाहगाह है। आज मैंने उसको विजिट किया तो उसमें मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतरी की उसमें गुंजाइश है और उसी वक्त मैंने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान साहब को मैंने डायरेक्शन भी दी है, उनको रिक्वेस्ट की है कि फौरी तौर पर वो उसका खुद विजिट करें और तमाम इंतजामात को अपनी निगरानी में उसमें जो भी कमी बेशी है उसको दूर किया जाए। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि वजीर आजम दौरे मुल्तान पर जनरल बस स्टैंड पर मुस्तकिल पनाहगाह का संगे बुनियाद भी रखेंगे। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। मियांवाली के मरूफ शायर दानिश्वर मजहर न्याजी की नातिया किताब अब्र रहमत की तकरीब रूनुमाई मुनाकिद हुई। मुकर्रिरीन ने मजहर न्याजी की फनी खिदमात पर रोशनी डाली। मारूफ शायर मोहम्मद मजहर न्याजी की 15वीं किताब नातिया किताब अब्र रहमत की तकरीब रूनुमाई मुनक्किद हुई। तकरीब रूनुमाई में मोहम्मद मजहर न्याजी ने कहा कि नातिया किताब की इशाअत पर सबसे ज्यादा खुशी हुई है। गजल की निस्बत नात कहने से रूहानी और कल्बी सुकून मिला है। मेरे लिए ये बड़ा खुशगवार तजुर्बा था कि मैं समझता था कि मैं गजलें कहता था, नज़में कहता था और उस पर दाद मिलती थी तो मुझे खुशी होती थी, लेकिन नात कहने के बाद जो खुशी हुई है और नात की अशात के बाद जो खुशी हुई है वो बेहद व बेकिनार है, उसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। डेप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन तनवीर खालिद ने कहा कि मजहर न्याजी की किताब अब्र रहमत वो गुलदस्ता है जो कई सालों से मजहर न्याजी के दिलो दिमाग में परवान चढ़ रहा था। मजहर न्याजी साहब की अब्र रहमत दर हकीकत वो गुलदस्ता है जो उनके कल्ब व ज़हन में परवान चढ़ता रहा और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, मोहब्बत और इश्क में उन्हें लफ्जों का पैरन पहनाकर अवाम के सामने पेश किया है। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर और तो कोई तोहफा लोगों के लिए नहीं हो सकता। मारूफ शायर नजीर जात का कहना था कि मजहर न्याजी खुश नसीब हैं जिन्होंने अब्र रहमत जैसी लाजवाल किताब लिखकर अपना नाम इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों में दर्ज करा लिया है। यकीनन मजहर न्याजी खुश नसीब है कि जो उसने अब्र रहमत जैसी एक खूबसूरत किताब जिससे उसका नाम इश्क रसूल के रजिस्टर में रकम हो गया है और यकीनन ये उसके लिए खुश नसीबी की बात है और साथ ये मियांवाली के लिए भी एक एजाज है। तकरीब की सदारत मारूफ शायर सर्जन डॉक्टर अरशद महमूद राना ने की। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन तनवीर खालिद बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। मोहम्मद मजहर न्याजी की नातिया किताब अब्र रहमत को शौरका की जानिब से अल्लाह और उसके रसूल की रहमत करार दिया गया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। दुनिया भर की तरह मुल्तान में भी ब्रेल का आलमी दिन मनाया गया। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर के ज़रिए तमाम तकरीब में ब्रेल डे के हवाले से केक काटा गया और नबीना अफराद में तोहफे तकसीम किए गए। दुनिया भर में ब्रेल का आलमी दिन मनाया गया। लुइस ब्रेल ने इस दिन नाबीना अफराद के लिए ब्रेल इजाद की थी। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर मुल्तान में तकरीब का इनाकात किया गया जिसमें समाजी रहनुमा आपा ज़हरा, सदर सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन जाहिदा हमीद, अमरीन बलोच समेत देगर समाजी रहनुमा ने शिरकत की। तकरीब में ब्रेल डे के हवाले से केक काटा गया और नाबीना अफराद में तोहफे तकसीम किए गए। हमने जब भी बात की है डिवाइसेस की बात की है, हमने सिस्टम्स की तब्दीली की बात की है। अगर सिस्टम्स के अंदर ये चीज़ें इजीली अवेलेबल होंगी, व्हील चेयर्स हैं, वाइट केन हैं, हेयरिंग एड्स हैं या वो एजुकेशन डिवाइसेस हैं, तो यही चीज़ें हैं जो हमारे डिसेबिलिटीज़ को ख़त्म कर सकती हैं, मिनिमाइज कर सकती हैं। सेंटर की चेयरपर्सन सादिया किरमानी का कहना था कि ब्रेल नाबीना अफराद की तालीम के लिए जरूरी है। नाबीना अफराद को ज्यादा से ज्यादा ब्रेल किताबें फराहम करना चाहिए। ऑडियो से वैसी पढ़ाई नहीं होती जैसी ब्रेल से होती है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि ब्रेल को ज़्यादा लोगों को ब्रेल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दी जाए, खुसूसन उन लोगों को, उन ब्लाइंड लोगों को जो ब्रेल से महरूम रहते हैं। उनकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती हैं लेकिन उन्हें ब्रेल के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता।
نابینا بچوں کا کہنا تھا کہ اگر زیادہ بریل کتابیں چھپوائی جائیں تو یہ پڑھائی میں مددگار ثابت ہوں گی۔ کیمرہ مین AD نواز کے ساتھ تلشپا آصف، ملتان۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کا کیک پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما M سلیم راجہ کی جانب سے کاٹا گیا۔ کیک کاٹنے کی تقریب میں سابق رکن قومی اسمبلی بیلم حسنین سمیت پارٹی عہدیداران اور کارکنان نے شرکت کی۔ احوال بتائیں گے امجد ملک۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما M سلیم راجہ نے کیک کاٹا۔ تقریب میں سابق رکن قومی اسمبلی بیلم حسنین نے خصوصی شرکت کی۔ پیپلز پارٹی کی رہنما کلثوم ناز بلوچ، سائمہ عامر، ضلعی صدر خواتین سیرش خان سمیت کثیر تعداد میں پارٹی عہدیداران اور جیالوں نے شرکت کی۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آئین اور شناخت دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے اور سوچ کو آگے لے کر بڑھ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، اس ملک میں اسلامی سربراہ کانفرنس کی، اس ملک کو آئین دیا، آج ہم اس شہید ذوالفقار علی بھٹو اسلام پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، سالگرہ کر رہے ہیں۔ بیگم بیلم صاحبہ نے یہ کاٹا ہے جنہوں نے سچائی کے لیے، حق کے لیے جان دے دی۔ پیپلز پارٹی کے جیالوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں نعرے لگائے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما سائمہ عامر کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نوجوانوں اور غریبوں کی جماعت ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو ہمارے لیڈر ہیں اور قوم کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے، اتنا آج تک کسی پارٹی نے، کسی لیڈر نے کام نہیں کیا۔ ان کے نقشے پہ چلتے ہوئے ان کی بیٹی بی بی شہید نے جتنے کام پاکستان کی بہتری کے لیے کیے ہیں، تو ہم آج ان کی سالگرہ کے موقع پر یہ عہد کرتے ہیں کہ ان کے مشن کو آگے لے کر چلیں گے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ منگل کو ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ملتان میں کیک کاٹنے کی تقریبات منعقد ہوں گی۔ کیمرہ مین محمد ہارون کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ ادھر ملتان آرٹس کونسل میں جاری معاشرتی رویوں پر مبنی فیملی ڈرامہ کچے دھاگے کا پہلا روز۔ ڈرامے میں شہر ملتان کے معروف فنکاروں نے اپنے فن کے جوہر دکھا کر شہریوں کو آبدیدہ کر دیا۔ ملتان آرٹس کونسل میں جاری فیملی ڈرامہ کچے دھاگے کی یہ کہانی اولڈ ہاؤس میں رہنے والے بوڑھے والدین کے گرد گھومتی ہے جو اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی غیروں کے رحم و کرم پر اولڈ ہوم میں زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے اوپر گزرے حالات کو یاد کر کے آبدیدہ ہو جاتے ہیں۔ کہانی میں معاشرے کے درد دل رکھنے والے ان لوگوں کی بھی نمائندگی کی گئی جو اپنی خوشیاں لاوارث اور بے آسرا لوگوں کے بغیر نہیں مناتے۔ کہانی میں معاشرے میں پنپنے والی روایتوں کے ہاتھوں مجبور اس بے بس خاتون کو بھی دکھایا گیا جس کی پیدر پہ بیٹیوں کی پیدائش اسے معاشرے میں شوہر اور اہل خانہ کی نظروں میں باندھ شمار کر چکی ہے۔ کہانی اس بوڑھی ماں کی بھی نمائندگی کرتی ہے جسے بیوی کے ہاتھوں مجبور بیٹا اولڈ ہوم کی نظر کر دیتا ہے۔ بیٹے کی یاد میں ماں سی سکتی رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام مقافات عمل پر ہوتا ہے۔ معاشرتی رویوں پر مبنی فیملی ڈرامہ کچے دھاگے 7 جنوری تک ملتان آرٹس کونسل میں پیش کیا جائے گا۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ روہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔